Hi, welcome to Inscapia. This is Act 2, Scene 1 of our Julius Caesar series. In the last scene, we see how Cassius and the other conspirators they gather at Pompey's porch and they talk about bringing Brutus to their group. And in this scene, they all visit Brutus's house and they converse and they plan to kill Caesar the next day. All right, so we start the scene. Rome, Brutus's orchard. Enter Brutus. Brutus, what Lucius ho? Lucius is the servant of Brutus. So Lucius ho, I cannot by the progress of the stars give guess how near today. So इसका मतलब है I do not know what time it is. So Lucius, just tell me. But Lucius was sleeping very soundly. So I would it were my fault to sleep so soundly कि काश मैं भी इतना साउंडली सो पाता इतने अच्छे से सो पाता ही इज ऑब्वियसली परप्लेक्स्ड बाय हिज ओन थॉट्स ऑफ वेदर टू किल सीजर और नॉट सो ही इज नॉट एबल टू स्लीप एंड seeing Lucius sleeping so soundly, he is almost envious. So then he wakes him up. When Lucius, when? I say, what Lucius? So enter Lucius. Called you, my lord? Brutus says, yes. Get me a taper in my study, Lucius. When it is lighted, come and call me here. So get me a candle, all right, in my study room. And when it is lighted, come and call me. Lucius says, I will, my lord. Then Brutus is contemplating. वो सोच रहा है what to do actually, whether to kill Caesar or not to kill Caesar, because he has no personal enmity with Caesar and he loves Caesar. But he thinks that for the betterment of Rome, Caesar must die. So he says, it must be by his death. And for my part, I know no personal cause to spurn it. It means it has to be his death. So he must die. Like, as far as I am concerned, I have no personal cause to be angry at him. I do not have any grievance against him. But for the general, that means for the general good of Rome, he would be crowned. And one day or the other, very soon, he would be crowned. And how that might change his nature, there is the question. And once he is crowned, how that will change his nature, वो कैसे change होगा, that is the question. It is the bright day that brings forth the adder. Adder का मतलब है snake. तो अभी तो पता नहीं चल रहा, but once it's a bright day, मतलब जब सीजर का टाइम आएगा तब पता चलेगा whether he is a snake or not. So snake का यहाँ पे negative connotation है. So snake मतलब something dangerous, something evil. So अभी तो नहीं पता चलेगा कि सीजर फ्यूचर में कैसा होगा, but it's highly likely that once he gets to be the king, he will become very evil. And that craves very walking. Once you see a snake, then you have to be very careful. So Caesar के साथ भी ऐसा हो सकता है कि if you crown him, that means you will put a sting in him. So एक सांप which has a very sharp sting, okay, which can bite you. So Caesar को crown कराना मतलब turning him into a snake, into a dangerous snake. That at his will he may do danger with, and उसका जैसे मर्जी he will inflict danger. Alright, he will inflict harm on anyone he wishes. The abuse of greatness is when it disjoins remorse from power. तो greatness का abuse तब होता है जब power से remorse मतलब guilt हट जाता है. ठीक है, जब power से लोग guilty feel करना छोड़ देते हैं, so then it is abusing your greatness. And to speak truth of Caesar, I have not known when his affection swayed more than his reason. पर अभी तक ब्रूटस के पास ऐसा कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि सीजर फ्यूचर में वैसा बनेगा. दे हैव जस्ट एन एजम्पशन. सो यहाँ पे वो खुद ही एक्सेप्ट करता है कि आई हैव नॉट नोन, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं. व्हेन इज अफेक्शन स्वेड मोर देन हिज रीजन, मतलब जब हिज लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स और हिज इंटरेस्ट स्वेड मोर देन हिज रीजन, उसका रैशनैलिटी, उसका रैशनल बिहेवियर उससे कभी भी, मतलब ही इज ऑलवेज रैशनल. उसने जो भी किया लॉजिकल रैशनल ही किया है. ऐसा कभी नहीं हुआ कि टू गेट समथिंग और जस्ट बिकॉज ही लाइक समथिंग उसके वजह से ही डिड समथिंग ओके दैट डज नॉट सूट हिम. तो ऐसा कभी उसने किया नहीं. बट इट इज ए कॉमन प्रूफ. बट ये तो आम बात है कि लोलीनेस इज यंग एम्बिशंस लेडर. सो क्या होता है व्हेन यू आर न्यूली एम्बिशियस ना, जब यू आर जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी, यू आर वेरी हम्बल.
If you're not humble, you will not be able to be successful, right? Where to the climber upward turns his face, जहाँ पे जब वो climb कर रहा होता है वो ऊपर देखेगा. And once he attains the utmost round, जब वो बहुत ऊपर पहुंच जाता है, once he attains a high rank, he then unto the ladder turns his back. उसके बाद वो, हम लोग बोलते हैं ना, पीठ दिखाना इन ए वे. तो इन ए वे सिंपल सिंपल बस इग्नोर कर देना, इररिलेवेंट समझना, अनइम्पॉर्टेंट समझना. ही लुक्स इन द क्लाउड्स स्कॉर्निंग द बेस डिग्रीज बाय व्हिच ही डिड असेंड. और जिनके ऊपर से उसने वो सक्सेस मिला है उसको, उनको फिर भूल जाता है. ठीक है. तो सीजर में देन लेस्ट ही में प्रिवेंट, और सीजर का भी यही हाल हो सकता है. एंड वो ऐसा ना हो, इसलिए वी हैव टू प्रिवेंट दिस. एंड सिंस द क्वारल विल बेयर नो कलर फॉर द थिंग ही इज, मतलब अभी तो इट्स नॉट लाइक दैट हम लोग सीजर को समझा देंगे. ओके, सो डिस्कशन का टाइम नहीं है, इट्स नॉट ए टाइम फॉर क्वारल. सो फैशन इज दस, तो ऐसा ही होना चाहिए, यही होगा. दैट व्हाट ही इज, अभी वो जैसा है, इफ ही इज ऑगमेंटेड, अगर वो डिग्री बढ़ गया, it would run to these and these extremities, then it will become something extreme. And therefore think of him as a serpent's egg which hatched would as his kind grow mischievous and kill him in the shell. तो इसलिए he is now like a serpent's egg, एक सांप का अंडा. तो अभी तो फिलहाल अंडा है, it's an egg, so it's harmless, but इसमें से निकलेगा तो सांप ही, so that will become dangerous in the future. So to avoid that dangerous snake in the future, is better that you kill him in the shell. So now he is like an egg, so अभी मार दो ताकि वो फ्यूचर में वो स्नेक के साथ डील ना करना पड़े. So Lucius enters and he says that taper burneth in your closet. सर कि मैंने कैंडल जला दिया. And searching the window for a flint, flint होता है वो आग जलाने के लिए पहले, तो वो स्पार्क करने के लिए, लाइक ए रॉक और समथिंग. ओके, तो उससे स्पार्क होता है जिससे चिंगारी निकलता है. सो सर्चिंग द विंडो फॉर ए फ्लिंट, आई फाउंड दिस पेपर. सो व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लाइट अप द कैंडल, आई गॉट दिस पेपर. इट्स सील्ड अप एंड आई एम श्योर इट डिड नॉट लाई देयर व्हेन आई वेंट टू बेड. तो ये जब मैं सोने गया था तभी लेटर नहीं था, अभी लेटर मिला. सो हमें अगर याद है, एक्ट 1 सीन 3 में कैशियस ने सीना को लेटर्स देके बोला था कि ये लेटर्स ब्रूटस के घर में, ऑफिस में, हर जगह फेंक देना. सो यही लेटर्स है एक्चुअली. ब्रूटस को लग रहा है कि ऑल द पीपल ऑफ रोम want to talk to him, they are addressing him to take control of the situation, to solve the problem of Caesar, but actually लोग नहीं बोल रहे थे, it was Cassius and his manipulation. All right, so वो letter दे देता है, gives him the letter. तो Brutus says, okay, now you can go to sleep, it is not day. फिर बोलता है, is not tomorrow boy the ides of March. ides of March मतलब 15th of March, the fated day. तो लूशियस बोलता है, नो नॉट सर. तो ब्रूटस बोला, लुक इन द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी वर्ड. बेचारा को सोने नहीं मिलता. सो पहले बोला टाइम बताओ, फिर बोला कैंडल जलाओ, अब बोलता है कैलेंडर देखो एंड टेल मी व्हाट्स द डेट टुमारो. तो लूशियस सेज, आई विल सर. तो लूशियस चला जाता है. सो ब्रूटस अभी वो चिट्ठी पढ़ने लेता है. द एक्सेलेशंस whizzing in the air give so much light that I may read by them. सो यहाँ पे तो नॉर्मली एक्सेलेशंस का मतलब होता है मीटियर्स, पर यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं द स्काई वॉज सो स्टॉर्मी, तो मे बी वो थंडर एंड स्टफ हो रहा था, एंड सो यहाँ पे इतना लाइट था कि ही कुड रीड इट. ओके, सो पता नहीं कैसे, बट ही कुड रीड द लेटर. सो ही ओपन्स द लेटर एंड रीड्स. और पता ही है क्या क्या होगा, बिकॉज ऐसे लेटर्स उसको और मिल ही रहे. वहाँ पे लिखा था, ब्रूटस यू आर अस्लीप, अवेक, सी योर सेल्फ, शेल रोम एक्सेट्रा. एक्सेट्रा दिया है, मतलब ये लेटर उसे ऐसा लेटर और बहुत जगह मिला है. ठीक है, सो कैशियस ने बहुत सारे लेटर्स फेंके थे, तो यहाँ पे एक्सेट्रा मतलब ये चीज़ उसको पहले भी मिला है. सो ही इज जस्ट समिंग इट अप कि रोम, क्या रोम, उनके लोग ऐसे रहेंगे, व्हाट विल हैपन. स्पीक, स्ट्राइक, रिड्रेस, ये 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. प्लीज स्पीक अगेंस्ट इट, स्ट्राइक एंड रिड्रेस, दैट मीन्स सोल्व दिस. ओके, यू आर अस्लीप, प्लीज अवेक. तो ऐसे लेटर में लिखा था. तो ब्रूटस बोलता है, सच इंस्टिगेशंस हैव बीन ऑफन ड्रॉप्ड वेयर आई हैव टुक देम. तो सच इंस्टिगेशन मतलब ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट और भी मुझे मिले हैं, जब मैंने उठाए मुझे अलग अलग जगह पे मिले हैं, और ऐसे ही लिखा होता है कि शेल रोम एक्सेट्रा, ये सब. दिस मस्ट आई पीस इट आउट. तो फिर से लिखा है यहाँ पे, शेल रोम स्टैंड अंडर वन मैंस और व्हाट रोम, लुक एट योर एंचेस्टर्स. तो ऐसे, और एंचेस्टर्स का एक स्टोरी है. एक टर्किन नाम का एक
टायरन किंग था, तो उसको ब्रूटस के एंचेस्टर्स ने भगाया था रोम से. सो उस समय जब किया था तो योर एंचेस्टर्स डिड दैट, सो यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस, ओके, एंड गेट रीड ऑफ सीजर. तो ऐसे ऐसे मतलब, ठीक है, ऐसे मतलब से लोग, मतलब वहाँ पे लेटर्स थे. My ancestors did from the streets of Rome the Turkine drive when he was called a king. Speak, strike, redress. और फिर से वही बात है, speak, strike, redress. तो वो बोले कि am I requested to speak and strike? I promise you, Rome, I promise you, if the redress will follow, you receive thy full petition at the hand of Buddha. मतलब अगर मेरे हाथ में होगा कोई solution, if I can think of anything, okay, if I can think of anything, then I will do it. You will receive the full help, okay, full help, whatever you are asking for ना, I'll do it. So Lucius comes, उसको डेट देखने बोला गया था. So Lucius comes and says, sir, March is wasted 14 days, मतलब 14 दिन हो गए हैं, 14 days are over. Tomorrow is the 15th of March, the Ides of March. तो बोलते it is good, go to the gate, somebody knocks. तो वो यहाँ पे कैशियस एंड द ग्रुप ऑफ कंस्पिरेटर्स, दे आर एक्चुअली हियर टू मीट ब्रूटस. तो वो लोग गेट में नॉक करते. तो लूशियस फिर गया कि कौन है गेट में नॉक कर रहे, देखने गया. तो फिर ब्रूटस फिर से वो अपना सॉलिलोकी मतलब जब कोई सिंगल डायलॉग है, सिंगल डायलॉग, एक ही कैरेक्टर एक सिंगल डायलॉग देते हैं, उसको सॉलिलोकी बोला जाता है. सो ही कंटिन्यूज हिज स्पीच कि सिंस कैशियस फर्स्ट डिड वेट मी अगेंस्ट सीजर आई हैव नॉट स्लेप्ट. मतलब जब कैशियस ने मुझे पहली बार इंस्टिगेट किया था अगेंस्ट सीजर, तो सीजर का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस के बारे में मुझे बोला था, तब से आई हैव नॉट स्लेप्ट, मुझे नींद ही नहीं आ रहा है. बिकॉज मेरे माइंड में अब वही है ना, कन्फ्यूजन है. सो आई एम कन्फ्यूज, आई एम परप्लेक्स्ड, मुझे नहीं पता क्या करना है. ऑल राइट, सो इट्स लाइक ए डायलेमा. ऑल राइट, इट्स डायलेमा, क्या करना है अभी. एक तो इस तरफ तो सीजर उसका अच्छा दोस्त है, ही लाइक सीजर, ही लव सीजर एक्चुअली, एंड इधर में द इट्स अबाउट रोम, इट्स अबाउट द गुड ऑफ रोम, तो उसका ऑनर है यहाँ पे. सो इट्स बिटवीन ऑनर एंड फ्रेंडशिप, तो किसको चूज करना है. सो यहाँ पे एक एथिकल डायलेमा निकल के आता है ब्रूटस का. सो ही इज नॉट एबल टू स्लीप. तो ब्रूटस बोलता है बिटवीन द एक्टिंग ऑफ ए ड्रेडफुल थिंग एंड द फर्स्ट मोशन, मतलब पहली बार जब एक ड्रेडफुल थॉट, ठीक है, एक ड्रेडफुल थॉट पहली बार जब दिमाग में आता है, वो दिमाग में आने से लेके उसके एक्शन तक, उसके एक्शन मतलब सपोज यू थिंक ऑफ ए बैड थिंग, उससे एक्शन तक जो प्रोसेस है, इट्स लाइक ए नाइटमेयर, बिकॉज it's a fight between your conscience and your body, okay, and your like base aspects of the body, okay, it's pleasure maybe. All right, so ye jo the interim, all the interim, so everything in between is like a phantasma or a hideous dream. So it's like a fantasy, it's like a nightmare, it's like a hideous dream. It's hideous means very डरावना type of scary. द जीनियस एंड द मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स आर देन इन काउंसिल. मतलब जीनियस मतलब जो भी रैशनल, जो भी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, एंड द मॉडल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब योर बेस इंस्टिंक्ट्स, योर इम्पल्सेस. ऑल राइट, तो दोनों में इट्स लाइक a fight, okay, it's like a fight, are then in council, and the state of man like a little kingdom suffers then the nature of an insurrection matlab revolt. It's like your body is revolting against you. So suppose your conscience says don't do it, and your impulse is do it. So now you are torn between the two options. It's like a good angel bad angel kind of thing कि करना है नहीं करना है, and it's like it's like a revolt, as if your own body, your own mind is revolting against you. All right, so ऐसा हालत था अभी ब्रूटस का. तो लूशियस आता है, आके बोलते हैं सर इट इज़ योर ब्रदर कैशियस एट द डोर हु डज डिजायर टू सी यू. तो कैशियस आया है एंड ही वांट्स टू सी यू. तो ब्रूटस बोलता है इज ही अलोन, अकेले आया है. तो लूशियस सेज नो सर देयर आर मोर विथ हिम. तो ब्रूटस बोलता डू यू नो देम, कौन आए उसके साथ. तो लूशियस बोलता है नो सर, their heads are plucked about their ears and half their faces buried in their cloaks. तो नहीं, उनको I cannot recognize them. तो उन लोगों ने अपना पूरा head डाल के रखा है, अपना cloaks उठा के रखा है. So I cannot see their face. All right, that by no means I may discover them by any mark or favor. मतलब I cannot see them, I cannot recognize them because they are fully dressed and I don't know who they are. But Cassius आया है साथ में. तो ब्रूटस बोलता है okay let them come. तो ब्रूटस को पता ही है, so they were all the conspirators. So he says, so Lucius goes away to bring them in, and then he continues. Brutus continues. तो यहाँ पे जो भी बात कर रहा है ब्रूटस अकेले ही कर रहा है. ऑल राइट,
तो दे आर द फैक्शन ओ कंस्पिरेसी, तो बोला कि दे आर द फैक्शन, दैट मीन्स द ग्रुप, द कंस्पिरेटर्स। फिर वो, ये थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से समझो। ओ कंस्पिरेसी मीन्स ही इज एड्रेसिंग कंस्पिरेसी, द थिंग इटसेल्फ। ऑलराइट, यहाँ पे होता है कोई भी इमोशन को, कोई भी चीज को वो लोग एड्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, लाइक दे विल एड्रेस ओह ब्रेवरी, ओ लव, दे कैन एड्रेस इट लाइक दैट। सो यहाँ पे कंस्पिरेसी को लेके ही एक स्टेटमेंट है, तो एज इफ डायरेक्टली कंस्पिरेसी को ही एड्रेस कर रहा है। मान लो कंस्पिरेसी एक इंसान है, और वैसे ही जैसे एक इंसान को एड्रेस किया जाता है, वैसे ही यहाँ पे कंस्पिरेसी को एड्रेस किया है। दैट शेम यू टू शो योर डेंजरस प्रो बाय नाइट, की रात को भी निकलने में तुमको शर्म आता है। बिकॉज यहाँ पे कैशियस लोग आफ्टर मिडनाइट दे हैव कम, एंड अभी भी दे हैव टू कवर देयर फेसेस। दैट मीन्स यहाँ पे कितना इविल एक थिंग होगा जिसको रात को भी आफ्टर मिडनाइट अपना चेहरा ढकना पड़े। तो दिन में क्या करेगा ये लोग, जब रात को ही ये लोग नहीं निकल पा रहे हैं। इसी चीज को ब्रूटस पूछता है कि if you shame, if you are ashamed, or if you are embarrassed, okay, not embarrassed in a way, if you cannot show your face, dangerous brow means your face at night when evils are most normally night is the time of evil। बोला जाता है ना, दिन अच्छा होता है, रात बुरा होता है। सो यहाँ पे evils are most पे मतलब रात को it's the time of evil, तब भी you are not able to show your face, that means how evil you are। So then by day where will you find a cavern dark enough to mask your monstrous visage। यहाँ पे बोला है कि अगर दिन रात को you are not able to show your face, दिन में ऐसा कौन सा केव में अब तुम लोग छुपे रहते हो, कहाँ अपना चेहरा छुपाते हो। कैवर्न मतलब केव, ऐसा दिन में कौन सा केव तुम लोग को मिलेगा दैट इज सो डार्क इनफ दैट यू कैन हाइड। मास्क मीन्स हाइड, मॉन्स्टर्स इज बिग, visage means face, where you can hide your big face, your monstrous face। तो फिर बोलते हैं कि तुम्हें ढूंढने का जरूरत नहीं है, ओके, यू डू नॉट नीड टू search for a hiding place because you will hide it in smiles and affability। you will hide it in smiles, वो जो स्माइल होता है, हंस के लोगों को दिखा के कि आई एम स्माइलिंग, सब कुछ है। एंड एफेबिलिटी इज अफेक्शन, तो लोगों को हम लोग फेक अफेक्शन, फेक स्माइल दिखा के हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि वी आर योर गुड फ्रेंड्स एंड स्टफ, बट एक्चुअली वी हैव इविल इंटेंशंस। तो यहाँ पे ऐसे बोला कंस्पिरेसी को कि कंस्पिरेसी चीज़ ही ऐसा है कि रात को भी निकलने में तुमको शर्म आता है, यू कैन नॉट शो योर फेस, पर दिन में you will just hide yourself, hide your intention behind smiles and affection, fake smiles and fake affection। all right, for if you path thy native semblance, मतलब पर अगर तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना पड़े, not Erebus itself were dim enough to hide divine preparation। Erebus मतलब hell, hell में भी जगह कम पड़ेगा, hell won't be dark enough to hide you, मतलब you are such evil, यू आर दैट इविल, इतना इविल कि हेल भी इतना डार्क नहीं है तुमको छुपाने के लिए। तो ये बोलने के साथ साथ कंस्पिरेटर्स आते हैं। कैशियस, यहाँ पे कंस्पिरेटर्स के नाम प्लीज नोट डाउन, यहाँ पे और एक ऐड होगा, ब्रूटस तो है ही, यहाँ पे ब्रूटस ऐड होगा एंड और एक ऐड होगा। ऑलराइट, सो कैशियस, केस्का, डिशियस ब्रूटस एंड दिस इज मार्कस ब्रूटस। ऑलराइट, सो जब भी हम लोग ब्रूटस बोलेंगे वी विल मीन दिस मार्कस ब्रूटस। ये डेशियस ब्रूटस अलग है, और डेशियस ब्रूटस को हमेशा डेशियस ब्रूटस ही बोला जाता है। सो अगर सिर्फ ब्रूटस है दैट इज मार्कस ब्रूटस। ऑलराइट, तो दो ब्रूटस है, तो कैशियस, केस्का, डेशियस ब्रूटस, सिना, मेटलस सिम्बर, ट्रेबोनियस। तो यहाँ पे 6 हो गए, ब्रूटस विल बी एडेड एंड और एक ऐड होगा बाय द एंड ऑफ दिस सीन, लिगेरियस। तो 8 कंस्पिरेटर्स। ऑलराइट, तो कैशियस आके बोलते हैं, आई थिंक वी आर टू बोल्ड अपॉन योर रेस्ट, गुड मोरो ब्रूटस डू इट ट्रबल यू बिकॉज आफ्टर मिडनाइट दे हैव कम। सो बोलते हैं कि आई थिंक वी आर डिस्टर्बिंग यू, गुड मॉर्निंग, आर वी ट्रबलिंग यू। तो ब्रूटस बोलता है, नो इट्स फाइन, आई हैव बीन अप दिस आवर अवेक ऑल नाइट। तो बोले हम ऐसे भी, आई हैव नॉट स्लेप्ट, मैं अवेक ही हूँ। सो नो आई दिस मैन दैट कम अलॉन्ग विथ यू, तो तुम्हारे साथ जो भी आए हैं, डू आई नो देम। तो कैशियस बोलते हैं, यस एवरी मैन ऑफ देम, तो यहाँ पे जो भी है सबको जानते हो।
एंड नो मैन हियर बट ऑनर। सो यहाँ पे जो भी है सब एवरीवन रिस्पेक्ट्स यू, ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें ऑनर नहीं करता। एंड एवरीवन डज विश यू हैड बट देयर ओपिनियन ऑफ योर सेल्फ विच एवरी नोबल रोमन बेयर्स ऑफ यू। तो बोला कि जो यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते हैं काश तुम भी अपने लिए वैसे ही सोचता। दे विश दैट, ऑलराइट, कि तुम कितने ऑनरेबल हो, कितने ग्रेट हो, वो तुमको भी पता हो। तो ये एक्ट 1 सीन में बोलता है ना, आई विल बी योर मिरर एंड शो यू योर क्वालिटीज दैट यू योरसेल्फ डोंट नो ऑफ। यही चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया इन ए वे, ठीक है। तो फिर बोलते हैं दिस इज ट्रेवोनियस, ही इज वेलकम, डिशेस ब्रूटस वेलकम, कैस्का सीना मेटलस, तो सबको इंट्रोड्यूस कराता है। एंड ब्रूटस सेज दे आर ऑल वेलकम। व्हाट वॉचफुल केयर्स डू इंटरपोज देमसेल्व्स बिटवीन योर आईज एंड नाइट। तो ऐसा क्या है, व्हाट हैज हैपेंड कि तुम लोग अभी तक सोए नहीं हो। सो बिटवीन योर आईज एंड नाइट व्हाट वॉचफुल केयर्स, मतलब ऐसा क्या प्रॉब्लम है दैट हैव कम बिटवीन योर आईज एंड नाइट, कि तुम लोग सोया नहीं है अभी तक। तो कैशियस फिर ब्रूटस को साइड में कुछ बात करने के लिए लेके जाता है। शैल आई एंट्रीट ए वर्ड, कि कैन आई टॉक टू यू इन प्राइवेट, ऐसे करके लेके जाता है साइड में, और हम लोग को पता नहीं चलता कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। ब्रूटस एंड कैशियस विस्पर। बाकी ये जो कन्वर्सेशन है ना, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। दे जस्ट आर्ग्यू कि किस तरफ से सनराइज होगा, किस तरफ डे ब्रेक होगा। सो ये पार्ट वी कैन स्किप इट अ बिट, हम लोग बस लाइन्स देख लेंगे, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिशेस बुटर सेज हियर इज द ईस्ट, यहाँ से दिन होगा। कैस्का बोलता है नो। सिन्हा बोलता है पार्डन सर, इट इज, यहाँ से ही होगा। और ये जो ग्रे लाइंस देख रहा है बिटवीन द क्लाउड्स, वो जो क्लाउड्स के बीच में ग्रे लाइंस दिख रहे हैं, दोज आर मैसेंजर्स ऑफ डे, मतलब उधर से ही डे ब्रेक होगा। तो कैस्का बोलता है बोथ ऑफ यू आर डिसीव्ड, मैं जिस तरफ सोर्ड पॉइंट करके रखा हूँ उसी तरफ से डे ब्रेक होगा। एंड इज गोइंग ऑन द साउथ वेइंग द यूथफुल सीजन ऑफ द ईयर सम 2 months। यहाँ पे जरूरी इतना कुछ नहीं है, यहाँ पे बस वही कोई सोल्स्टिस वगैरह का बात करता है। और बोला है कि ये जो जिस तरफ मैंने कैपिटल है, जिस तरफ कैपिटल मतलब जो सेनेट बिल्डिंग है और उधर ही है, उस तरफ से ही सनराइज होगा, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन जस्ट स्किप इट अ बिट, ओके। कोई डाउट होने से यू कैन जस्ट आस्क। सो ब्रूटस और कैशियस ये लोग बात कर रहे थे, एंड उधर से आके सो ब्रूटस हैज एक्चुअली अग्रीड टू ज्वाइन कैशियस। तो मे बी दे वर विस्परिंग अबाउट दैट ओनली। एंड ब्रूटस आके फिर बोलते हैं कि गिव मी योर हैंड्स ऑल ओवर वन बाय वन। सबको मतलब हैंडशेक करता है, ठीक है। हैंडशेक मतलब आई एम विथ यू, ठीक है, आई एम ऑन योर साइड। एंड कैशियस बोलते हैं कि लेट अस स्वेयर आवर रेजोल्यूशन, और एक ओथ ले लेते हैं, ठीक है, दैट विल नॉट फॉल्टर। हम लोग ने जो डिसाइड किया है वो करेंगे, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो ब्रूटस इज अगेंस्ट दैट। ब्रूटस को ये सब ओथ ये सब नहीं पसंद। तो ब्रूटस बोलता है नो, नॉट एन ओथ, कोई ज़रूरत नहीं है ओथ का। इफ नॉट द फेस ऑफ मैन, कि हमारे जो लोग हैं उनका चेहरा देख के, द सफरेंस ऑफ आवर सोल्स, जो लोग सफ़र करने वाले, द टाइम्स अब्यूज, जो पावर और इन्फ्लुएंस का अब्यूज हो रहा है, इफ दीज बी मोटिव्स वीक, अगर ये अगर एनफ नहीं है, अगर ये इनफ नहीं, अगर तुमको लगता है कि इसके ऊपर एक ओथ भी चाहिए, सो देन इट्स नॉट नेसेसरी, हम लोग जाके बस सो जाते हैं, ऑलराइट। सो द thing that we are doing it for the good of Rome, that should be enough reason, motivation, inspiration, etc. So इसके ऊपर we do not need an oath. The face of man, sufferance of our souls, times abuse, these are sufficient motives. If these are motives weak, अगर ये कम पड़ते हैं, then break off betimes, छोड़ दो ये सब कुछ छोड़ दो। And every man hands to his idle bed, सब जो ये midnight, after midnight तुम लोग यहाँ पे हम लोग प्लान कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के अपने अपने आइडल बेड में चला जाओ, वो जाके सो जाओ। एंड लेट हाई साइडेड टिरानी रेंज ऑन, और चलते रहने दो, जो चल रहा है चलते रहने दो, टिल ईच मैन ड्रॉप बाय लॉटरी, मतलब जब हम लोग मरेंगे तब मरेंगे, कभी उसके साथ लड़के मरेंगे, कभी वैसे ही मरेंगे, तो बाय चांस जैसे होता है नॉर्मली नेचुरली हम लोग मरेंगे, ठीक है। एंड लेट सीजर डू व्हाट ही वांट्स, बट इफ दिस, एज आई एम श्योर दे डू, बेयर फायर एनफ टू किंडल कावर्ड्स। तो बोले कि बट ये सब अगर रीजंस एनफ है, जो मेरे हिसाब से इतना एनफ है कि कावर्ड्स को भी ब्रेव बना दे, टू किंडल कावर्ड्स एंड टू स्टील विद वेलर द मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वुमेन। मतलब यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि फेमिनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, एंड वुमेन को भी उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे ये कि जो मेल्टिंग स्पिरिट्स ऑफ वुमेन भी, अगर कोई वुमेन का भी जो स्पिरिट है ना उसको भी ब्रेव बना दे,
तो दिस इज एनफ रीजन ब्रूटस के हिसाब से. देन कंट्रीमैन, व्हाट नीड वी एनी स्पर बट आवर ओन कॉज. तो फिर हमें और दूसरा स्पर, मतलब हमें कोई दूसरा एडेड ओथ, एडेड एक्शन क्यों चाहिए. बट आवर ओन कॉज इज enough to prick us to redress that will force us to solve this problem. What other bond than secret romance? कि हम लोग और क्या बॉन्ड चाहिए. देखिए, ऐसा कोई ओथ वाला बॉन्ड क्यों चाहिए. वी आर रोमन्स, वी हैव रोमांस, वी हैव गिवन आवर वर्ड्स. ओके, हमने बोल दिया है, so we have already, this is our word is our oath. Okay, we are Romans, we have spoken the word and will not palter and will not move away. ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे. एंड व्हाट अदर ओथ देन ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी एंगेज्ड. कि ये एक ही ऑनेस्टी होना चाहिए कि दिस शैल बी और विल फॉल फॉर इट. मतलब ये करना है, नहीं तो विल डाई ट्राइंग. सो दिस इज एनफ फॉर अस. स्वेयर प्रीस एंड कावर्ड्स एंड मैन कॉटलेस. फिर वो बोलते हैं कि ऐसे कौन लोग होते हैं जिन्हें ओथ का जरूरत पड़ता है. ठीक है, ये सब प्रीस्ट, कावर्ड्स, and cautelous means crafty, cunning people. Old feeble carrions is weak old people, the dying people, and such suffering souls. और ये सब जो souls suffer कर रहे हैं, ठीक है, the suffering souls that welcome wrongs, मतलब जिन्हें कुछ गलत काम करना होता है. दिस क्राफ्टी कनिंग पीपल, जिनको खुद पे भरोसा नहीं है, किसी और पे भी भरोसा नहीं है, वैसे लोगों को हमेशा हर बात पे ओथ चाहिए कि वादा करो, you will be there, promise you will be there. But Romans, we said we will be there and we will be there. Okay, we are not crafty cunning people. Alright, so यहाँ पे इन लोगों का नाम लिया गया है, priests, cowards, cautelous men, these feeble carrion, जो लोग जो जिन्हें ओथ का जरूरत पड़ता है. बिकॉज इन लोगों के दे वेलकम रॉन्ग्स, इनके साथ गलत होता है, एंड दे अनटू बैड कॉजेस स्वेयर. ठीक है, और इनको गलत काम करने के लिए इनको, और इनका जो फियर है, इनका जो सफरिंग है, उसके वजह से दे स्वेयर. सच क्रीचर्स एंड मैन एज मैन डाउट, और उनके मन में डाउट है, इसलिए दे स्वेयर. ऑलराइट, इसलिए दे स्वेयर. बट डू नॉट स्टेन द इवन वर्च्यू ऑफ आवर एंटरप्राइज. और हमारा जो वर्चुअस काम है उस पर दाग नहीं लगाना है ये सब ओथ लेके. ठीक है, ये सब में दाग नहीं लगाना है. नॉर द इनसप्रेसिव मेटल ऑफ आवर स्पिरिट, और हमारा जो इनसप्रेसिव स्पिरिट है, ठीक है, उसको भी दाग नहीं लगाना है. टू थिंक दैट आवर कॉज और आवर परफॉर्मेंस डिड नीड एन ओथ. कि हमारा जो कॉज है, हमारा कॉज गलत नहीं है कि हमें ओथ लेना पड़े, या हमारा जो एक्शन है उनको उसको ओथ का जरूरत पड़े कि एक मोटिवेशन मिल जाएगा, नहीं चाहिए. व्हेन एवरी ड्रॉप ऑफ ब्लड दैट एवरी रोमन बेयर्स एंड नोबली बेयर्स इज गिल्टी ऑफ ए सेवरल बास. मतलब अगर कोई भी एक रोमन ने जुबान दिया है, if he has given a promise, and if he breaks a smallest particle of any promise, he is guilty of a several bastardy. मतलब he will be considered as a bastard. मतलब he will not have Roman blood, because अगर Roman blood होता तो he will not break a smallest particle of his promise. ठीक है, this is what Brutus says. तो कैशियस भी मान जाता है. ठीक है, there is no one who will talk against Brutus. So Brutus भी कैशियस भी बोलता है. But what of Cicero? Shall we sound him? I think he will stand very strong. तो Cicero को भी conspiracy में शामिल करे क्या? तो वो पूछता है. और he will be with us. He will stand very strongly with us. तो कैस्का बोलता है let us not leave him out. And सिना भी बोलते हैं no by no means. तो यहाँ पे और एक चीज़ देखने लायक है कि जब भी कैशियस या ब्रूटस अपना ओपिनियन देते हैं, बाकी जो लोग होते हैं ना, दे मोस्टली एंड अप सेइंग यस होंगे. ठीक है, दे डू नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट कैशियस और ब्रूटस. सिर्फ ब्रूटस और कैशियस ही जो एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं, बाकी जो लोग हैं दे डू नॉट कॉन्ट्रेडिक्ट ब्रूटस एंड कैशियस. तो यहाँ पे पहले कैस्का सीना बोलता है हाँ उसको भी ले लो. मेटलस सिम्बर भी बोलता है कि लेट अस हैव हिम, for his silver hairs will purchase as a good opinion and by men's voices to comment out. मतलब silver hairs मतलब वो he is an aged person. ठीक है, he is an aged person and इतना मेच्योर पर्सन अगर उसके कंस्पिरेसी में होगा, इट्स जस्ट लाइक हैविंग ब्रूटस ना. बिकॉज एक मेच्योर पर्सन अगर साथ में है तो ऐसा लगेगा कि दे डीड ए मेच्योर थिंग. ठीक है, ऐसा नहीं लगेगा कि ये वाइल्ड यूथ इन लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया है. ओके, इन इम्पल्स, इट्स एन इम्पल्सिव थिंग, ऐसा नहीं लगेगा. ऐसा लगेगा कि अगर सिसेरो है साथ में, ब्रूटस है साथ में, तो ठीक है,
इट विल ऑल बी बरीड इन हिज ग्रेविटी। तो ये सब ऐसा लगेगा कि हिज जजमेंट रूल्ड आवर हैंड्स एंड नॉट आवर यूथ एंड वाइल्डनेस। ठीक है, कि उन लोगों ने ही एक्चुअली प्लान किया होगा एंड एवरीथिंग विल बी बरीड इन हिज ग्रेविटी। तो उसका जो पर उसका जो रेस्पेक्ट है, रेवरेंस है, उसी में ये सब चीज़ बड़ी हो जाएगा। इसलिए तो वो लोग ब्रूटस को भी अपना साथ शामिल करना चाहते थे, बिकॉज ब्रूटस का भी यही रोल था कि अगर ब्रूटस साथ में होगा तो जो चीज़ ऑफेंस लगता था यहाँ पे ऐसा कुछ ऑनरेबल लगेगा कि कुछ अच्छा काम ही किया, ब्रूटस है साथ में तो कुछ सोच समझ के ही किया, ऐसा ऐसा ही चीज़ है। तो पर ब्रूटस बोलता है, नेम हिम नॉट, लेट अस नॉट ब्रेक विथ हिम, फॉर ही विल नेवर फॉलो एनीथिंग दैट अदर मैन बिगिन। पर ब्रूटस बोले कि नहीं चाहिए, ही विल नॉट फॉलो एनीथिंग दैट अदर पीपल स्टार्ट, तो वो हमारे साथ नहीं आएगा। और जैसे ही ब्रूटस बोलते कि नहीं चाहिए, तो कैशियस बोलता है देन लीव हिम आउट, एंड कैस्का बोलता है इंडीड ही इज नॉट फिट। तो डिशियस ब्रूटस फिर पूछते हैं, शेल नो मैन एल्स बी टच बट ओनली सीजर। तो डिशेस बुटर्स बोलते हैं कि अगर सिर्फ सीजर को ही मारेंगे हम लोग, या उसके साथ और कोई, उसके साथ भी किसी को मारना पड़ेगा। तो कैशियस बोलते हैं कि डिशियस वेल वेल सेड, आई थिंक इट इज नॉट मीट मार्क एंटनी सो वेल बिलवेड ऑफ सीजर शुड आउटलिव सीजर। तो ऐसा है कि मार्क एंटनी जो सीजर का बहुत क्लोज था, तो कैशियस बोलते हैं कि ये शायद अच्छा ना हो कि मार्क एंटनी शुड आउटलिव सीजर, मतलब मार्क एंटनी भी जिंदा रहे। ठीक है, हमें उसे भी मारना होगा। वी शेल फाइंड ऑफ हिम ए श्रीउड कंट्रीब्यूटर, मतलब मार्क एंटनी अगर जिंदा रहे तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग राइवल बन सकता है। एंड यू नो हिज मीन्स इफ ही इम्प्रूव देम मे वेल स्ट्रेच सो फार एज टू एनॉय अस ऑल। अगर उसने अपना रिसोर्सेज स्ट्रेच किया, ठीक है, अगर उसने इम्प्रूव किया तो हम सबको परेशानी होगा। विच टू प्रिवेंट लेट एंटनी एंड सीजर फॉल टुगेदर। तो बाकी लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एंटनी को भी साथ में ही मारना चाहिए हमें, एंटनी एंड सीजर। पर ब्रूटस अगेन ही कंट्रडिक्स कैशियस। तो वो बोलते हैं कि आवर कोर्स विल सीम टू ब्लडी, कायस कैशियस, कि हमारा एक्शन विल सीम टू ब्लडी। अगर हम सीजर को भी मारे, साथ में एंटनी को भी मारे, तो इट विल लुक वेरी ब्लडी। इट विल बी लाइक टू कट द हेड ऑफ एंड देन हैक द लिम्स, की सर भी काटा फिर हाथ पैर भी काटे। जरूरी नहीं है ये करना, सीजर को मारना ही इनफ है, बिकॉज सीजर इज लाइक द हेड। तो सीजर को ही अगर मार देंगे तो मार्क एंटनी इट्स लाइक द आर्म्स एंड लेग्स, क्या ही कर लेगा। ठीक है, और अगर हम वैसे मारेंगे दोनों को, इट विल सीम लाइक रेथ इन डेथ एंड एनवी आउटवर्स, मतलब हमने गुस्से में मारा है एंड एनवी जेलसी में मारा है। फॉर एंटनी इज बट ए लिम्ब ऑफ सीजर, तो एंटनी इज जस्ट लाइक द आर्म्स ऑफ सीजर। तो अगर सीजर ही नहीं रहेगा तो एंटनी क्या करेगा। एंड लेट अस बी सेक्रीफाइसर्स बट नॉट बुचर्स, कहियस कि हमें सेक्रीफाइसर्स बनना है, हमें सेक्रीफाइस देना है सीजर को। ठीक है, उसे कसाई जैसा हमें, वी शुड नॉट सीम लाइक बुचर्स। ऑल राइट, वी ऑल स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर एंड इन द स्पिरिट ऑफ मैन देयर इज नो ब्लड, कि हमें सीजर के साथ पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं। सी यहाँ पे ब्रूटस जॉइन्स दिस ग्रुप बिकॉज उसको लगता है कि वो जैसे सोचते हैं रोम के बारे में, तो बाकी लोग भी वही सोचते, पर ऐसा नहीं है। बाकी लोग दे आर एनवियस ऑफ सीजर, दे आर जेलस ऑफ सीजर। ऑलराइट, बट ब्रूटस को लगता है कि सब उसके जैसा है। ब्रूटस जेन्युइनली सोचता है कि रोम का भलाई के लिए वो सीजर को मारेगा। ऑलराइट, तो इसलिए वो बोलते हैं कि वी स्टैंड अप अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सीजर नॉट अगेंस्ट द पर्सन, एंड इन द स्पिरिट देयर इज नो ब्लड। अगर ऐसा कुछ होता कि वी कुड कम बाय सीजर स्पिरिट एंड नॉट डिसमेंबर सीजर, मतलब इफ देयर वेर ए वे, अगर एक भी ऐसा रास्ता होता दैट आई कुड कन्विंस सीजर एंड नॉट किल हिम, देन आई विल चूज दैट। बट अलास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, सो सीजर मस्ट ब्लीड फॉर इट, तो सीजर को मरना होगा। इसलिए जेंटल फ्रेंड्स, लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट रैथफुली, कि उसे ब्रेवली मारना है पर गुस्से में नहीं मारना है। लेट्स कार्व हिम एज ए डिश फिट फॉर द गॉड्स नॉट ह्यू हिम एज ए कार्कस फिट फॉर हाउंस, की हमें ऐसे लाइक ए स्कल्प्टर, जैसे स्कल्पचर बनाते हैं ना, तो वैसे एक डिश कार्व करना है उससे, दैट इज फिट फॉर द गॉड्स, तो उसे वैसे मारना है एज ए बलि दे रहे हैं उसका। ठीक है, नॉट ह्यू हिम एज ए कार्कस फिट फॉर हाउस, पर कसाई जैसा नहीं मारना है। ठीक है, कि कुत्ते लोग को खिला दूंगे, मतलब ऐसे होते हैं ना, कुत्ते लोग को खिला देंगे, वैसे नहीं करना है। ठीक है, वी शुड नॉट शो एनिमिटी, वी शुड नॉट शो एंगर, वी शुड शो इट एज ए नेसेसिटी, कि बस मारना जरूरी था। ठीक है,
And let our hearts, as subtle masters do, stir up their servants to an act of rage and after seem to chide them. And हमारा जो heart है ना, उसे तो ऐसा लगना चाहिए कि हमने कुछ गलत ही किया है, ठीक है? इट्स एक्चुअली द थिंग इज, वी नो इट्स इंपॉर्टेंट, बट यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि जैसे मास्टर्स करते हैं अपने सर्वेंट्स के साथ, खुद ही उनको गुस्सा दिलाएंगे एंड फिर उन्हीं को डांटेंगे तुमको गुस्सा क्यों आया। तो वैसे ही हमारा हार्ट जो है, इट नोज दैट दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज नेसेसरी, बट थोड़ा सा हमें भी वो रिग्रेट ऐसा होना चाहिए, मैं हमारा हार्ट को हमें स्कोल्ड करना चाहिए बाद में, ठीक है, गुस्सा करना चाहिए कि एक्चुअली थोड़ा सा रिग्रेट होना चाहिए। तो दिस विल मेक आवर पर्पज नेसेसरी, ऐसा है कि हमें मन नहीं था बट करना पड़ा, ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको मार ही रहे, वो नहीं कर सकते, ठीक है। दिस विल मेक आवर पर्पज नेसेसरी एंड नॉट एनवियस, तो ऐसा लगेगा कि इट्स नेसेसरी एंड हम लोग ने जेलसी में नहीं किया ये सब। which so appearing to the common eyes we shall be called perjurers not murderers। ये इंपॉर्टेंट है, हमें पर्जरस मतलब पर्ज मतलब टू क्लीन। वो जैसे लोग गंगा स्नान करते हैं तो मान्यता है कि पाप धुल जाते हैं, तो वैसे उसको बोलते हैं पर्जिंग। तो ये बोले हमें पर्जरस, वी हैव टू क्लीन रोम, we have to clean Rome. We are not murderers, okay? We are perjurers. And for Mark Antony, think not of him, for he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off। मतलब जैसे एक सर कटने के बाद आर्म कुछ नहीं कर सकता, तो मार्क एंटनी को वैसे ही सोचो, वन सीजर इज डेड, मार्क एंटनी कुछ नहीं कर पाएगा। पर कैशियस तब भी कंट्रडिक्ट करता है, बोलते हैं कि येट आई फियर हिम, पर नहीं, मुझे उसका रिसोर्सेज से उससे डर है। फॉर इन द इनग्राफ्टेड लव ही बेयर्स टू सीजर, की जो लव है उसका टूवर्ड्स सीजर, पर वो सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं कर पाता है, ब्रूटस उसको हाफ वे ही रोक देता है। बोले अलास गुड कैशियस डू नॉट थिंक ऑफ हिम, कि नहीं करना है, हम एंटनी को नहीं मारेंगे। इफ ही लव सीजर ऑल दैट ही कैन डू इज टू हिमसेल्फ टेक थॉट एंड डाई फॉर सीजर। मतलब अगर उसको कुछ करना ही है ना, तो ही विल जस्ट थिंक अबाउट सीजर एंड डाई, वो उतना ही कर सकता है। एंड दैट वेयर मच ही शुड, फॉर ही इज गिवन टू स्पोर्ट्स टू वायलेंस एंड मच कम, बिकॉज एंटनी को ये सब पॉलिटिक्स से कोई उसको उतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है ब्रूटस के हिसाब से। वो बस स्पोर्ट्स, वाइल्डनेस, पार्टी करना, रिवेलर, ठीक है, वो बस पार्टी स्पोर्ट्स करना एंड कंपनी, उसको बस कंपनी चाहिए लोगों का, तो वो सब में ही इज़ गुड, ओके। तो वो यहाँ पे आके हमसे रिवेंज लेके हमारा जिंदगी मतलब प्रॉब्लमेटिक नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रूटस। तो जैसे ही ब्रूटस ने बोला, सब लोग फिर वो हो गए कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बोले कि देयर इज नो, ट्रेबोनियस बोले देयर इज नो फियर इन हिम, लेट हिम नॉट डाई, ठीक है, उससे डरने का कुछ नहीं है, उसको नहीं मरना है। फॉर ही विल लिव एंड लाफ एट दिस हियरआफ्टर, बिकॉज आज फिर रहेगा एंड फ्यूचर में ही विल बी एबल टू लाफ एट दिस, कि हाँ मतलब ये सब नॉर्मल बात हो जाएगा। क्लॉक स्ट्राइक्स, तो ब्रूटस बोलते हैं काउंट द क्लॉक, मतलब कितने बजे, क्या कैशियस बोलते हैं द क्लॉक हैड स्ट्रिकन 3, मतलब 3 बज गए रात को। तो ट्रेबोनियस बोलता है इट्स टाइम टू पार्ट, अभी जाने का समय हो गया। तो कैशियस बोला पर और एक चीज का डाउट है, वेदर सीजर विल कम फॉर टुडे और नो, बिकॉज सीजर को ऑलरेडी सूटसेयर ने मना किया था कि बिवेयर ऑफ द आइट्स ऑफ मार्च, मतलब 15th ऑफ मार्च। एंड फिर हम लोग एक्ट 2 सीन 2 में भी देखेंगे कुछ उस सीजर का वो जो वाइफ है कल्पूर्निया, उसको ड्रीम्स आते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ भी इवेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे कैशियस बोलते हैं कि आई एम डाउटफुल वेदर सीजर विल कम टुडे और नॉट टू द कैपिटल, बिकॉज सीजर को घर में घुस के तो नहीं मारेंगे, ठीक है, कैपिटल में मारेंगे। सो अगर नहीं आएगा कैपिटल फिर तो we cannot kill him, for he is superstitious grown of late, मतलब recently he has become a bit superstitious, quite from the main opinion he held once of fantasy dreams and ceremonies। तो पहले जो उसका ओपिनियन था, he is to disregard all these things, कि ये सब सपने, is this फ्यूचर टेलिंग एंड ऑल दो सिम्बॉल्स एंड ड्रीम्स, फैंटेसी, ये सब को पहले डिसरिगार्ड कर देता था। बट इट मे बी दिस अपरेंट प्रोडिजीज, द अनअकस्टम्ड टेरर ऑफ दिस नाइट एंड द परसुएशन ऑफ हिज ऑगर्स, मतलब ये जो रिसेंट अभी जो अननेचुरल चीज़ें हो रहे हैं, दिस प्रोडिजीज, जो इस रात को जो ये स्टॉर्मी सा नाइट है, एंड द परसुएशन ऑफ हिज ऑगर्स, जो भी उसके सपोर्टर्स है, ठीक है, जो उसको परसुएट करेंगे आप मत जाओ, आज बाहर मत निकलो, ऐसे भी आपका जान को खतरा है, ऐसे ऐसे। तो ये सब कुछ मिला के मे होल्ड हिम फ्रॉम द कैपिटल टुडे, ये सब कुछ कंबाइंड मे स्टॉप हिम फ्रॉम गोइंग आउट टुडे।
ऑलराइट, टुडे मतलब बिकॉज आज ही के दिन मारना है, तो इट्स ऑलरेडी 3 AM और दिन में सीजर को मारना है, ठीक है। सो इट्स ऑलरेडी द 15th of March। ओके, फिर डिशेस ब्रूटस बोलते कि नेवर फियर दैट इफ ही बी सो रिजॉल्व आई कैन ओवरस्वे, मतलब अगर वो डिसीजन बना लेते कि वो नहीं आएगा कैपिटल, आई विल ओवरस्वे हिम, मैं उसको मैनिपुलेट करके ले आऊंगा, ठीक है। तो ये चैलेंज डिशेस ब्रूटस लेता है कि आई विल ब्रिंग हिम, फॉर ही लव्स टू हियर दैट यूनिकॉर्न्स में बी बिट्रेड विथ ट्रीज। तो यहाँ पे उसका एक प्लान है कि आई विल फ्लैटर हिम, कुछ कुछ तो करके आई विल ब्रिंग हिम। सो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है कि कैसे कैसे एनिमल्स को ट्रैप किया जाता है और इंसानों को भी कैसे ट्रैप किया जाता है थ्रू फ्लैटरी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल बोला है कि यूनिकॉर्न्स में बी बिट्रेड विथ ट्रीज, बिकॉज यूनिकॉर्न्स का जो हॉर्न होता है, ठीक है, वो जाके ट्रीज में फंस जाता है। सो यू कैन कैच ए यूनिकॉर्न लाइक दैट। एंड बेयर्स विद ग्लासेस मिरर्स, उस तो बेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। एलिफेंट्स विद होल्स, जो पिट्स होते हैं, बड़े बड़े पिट्स होते हैं जिसको ढका जाता है, एंड एलिफेंट्स आके उसमें गिर जाते हैं आके, ठीक है। सो एलिफेंट्स विद होल्स, लायंस विद टॉयल्स या फिर नेट्स जो मिलते हैं, एंड मैन विद फ्लैटरर्स, तो मैन को यू कैन कैप्चर बाय फ्लैटरी। बट वेन आई टेल हिम ही हेट्स फ्लैटरर्स ही सेज ही डज, और पर मैं उसको जब बोलता हूँ कि पर आपको तो फ्लैटरी कर ही नहीं पाते लोग, आपको तो फ्लैटरर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बोलते हैं हाँ हाँ तुमने सही बोला, बीइंग देन मोस्ट फ्लैटर्ड, तो बोला और एक्चुअली वो फ्लैटर्ड ही होता है। बट अगर उसको बोलो कि पर आपको तो फ्लैटरी एकदम पसंद नहीं, बोलता है हाँ हाँ मुझे एकदम पसंद नहीं है, ठीक है। सो आई विल बी एबल टू, ठीक है, बोलता है आई नो सीजर, आई विल बी एबल टू शेप हिम, ठीक है, आई बी एबल टू मैनिपुलेट हिम एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। तो बोला कि लेट मी वर्क, लेट मी थिंक, फॉर आई कैन गिव हिज ह्यूमर द ट्रू बेंड एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। के उसके आई विल शेप हिम, आई विल शेप हिज आइडियाज, आई विल शेप हिज माइंड एंड आई विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल, तो मैं लाऊंगा उसको। तो कैशियस बोलता है ना, विल ऑल ऑफ अस बी देयर टू फैच हिम, कि हम लोग सब जाएंगे उसको लेके आने के लिए, तब जाके ही विल कम। तो ब्रूटस बोलता है बाय द 8th hour, मतलब 8 AM, इज दैट द अटर मोस्ट। तो सीना बोलता है बी दैट द अटर मोस्ट एंड फेल नॉट देन, तो 8 बजे विल ऑल गैदर एट सीजर्स हाउस एंड विल ब्रिंग हिम टू द कैपिटल। तो फिर मेटेलियस सिम्बर बोलता है इस इंसान के बारे में, काइयस लिगेरियस, जो ये लास्ट जो कंस्पिरेटर ज्वाइन होता है, काइयस लिगेरियस दैट बेयर सीजर हार्ट। तो यहाँ पे जो काइयस लिगेरियस है, ही ऑल्सो हेट्स सीजर हु रेटेड हिम फॉर स्पीकिंग वेल ऑफ पोम्पे, कि सीजर ने उसको बहुत डांट लगाया था, उसको पनिश किया था बिकॉज ही स्पोक वेल ऑफ पोम्पे, जो सीजर का राइवल था। तो इसलिए बोले कि आई वंडर नन ऑफ यू हैव थॉट ऑफ हिम, क्यों उसके बारे में तुम लोगों ने नहीं सोचा। तो ब्रूटस बोलता है नाउ गुड मेटेलस, मैंने ऑलरेडी बात किया है उसके साथ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो बोले गो अलॉन्ग बाय हिम, ही लव्स मी वेल एंड आई हैव गिवन हिम रीजंस, सेंड हिम बट हियर आई विल फैशन हिम। तो बोला कि उसके पास जाओ, ही लव्स मी वेल एंड मैंने उसको इनफ रीजंस दिए तो है, उसको इधर भेज दो एंड आई विल ब्रिंग हिम। तो कैशियस बोलता था मॉर्निंग कम्स अपॉन अस, ऑलरेडी 3 बज गए थे तभी, तो बोला कि ऑलमोस्ट हम लोग मॉर्निंग हो गया, डे ब्रेक हो गया, विल लीव यू ब्रूटस, तो हम लोग अभी चलते हैं। एंड फ्रेंड्स डिस्पर्स योर सेल्फ बट ऑल रिमेंबर वॉट यू हैव सेड एंड शो योर सेल्फ ट्रू रोमन्स। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के तुम लोग आए नहीं, ठीक है, तो शो योर सेल्फ एज ए ट्रू रोमन, रिमेंबर ऑल दैट यू हैव सेड। एंड ब्रूटस बोलते हैं कि नो वन शुड बी सस्पिशियस ऑफ अस, ठीक है, कोई हमें डाउट नहीं करना चाहिए। सो यू शुड गुड जेंटलमैन लुक फ्रेश एंड मैरीली, सो यू शुड लुक फ्रेश एंड मैरी, मतलब हैप्पी। लेट नॉट आवर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पसेस, तो ऐसा हमें देख के नहीं लगना चाहिए कि ओके वी शुड नॉट शो एनी सस्पिशियस बिहेवियर, हमारा चेहरा से नहीं पता चलना चाहिए। वही बात है जो कंस्पिरेसी वाला बात बोला था, विल हाइड इट इन स्माइल्स एंड एफिबिलिटी, वही चीज़ यहाँ पे करने के लिए बोल रहे। लेट नॉट आवर लुक्स पुट ऑन आवर पर्पसेस बट बेयर इट एज आवर रोमन एक्टर्स, जो एक्टर्स होते हैं उनके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, दे डू देयर रोल, पता ही नहीं चलता वो लोग सोच क्या रहे देन कर क्या रहे, ठीक है। सो यहाँ पे विथ कंसिस्टेंसी, विथ फॉर्मेलिटी, विथ हैप्पीनेस, ठीक है, विथ अफेक्शन हम लोग उसे छुपा लेंगे। एंड सो गुड मोरो टू यू एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड लेट्स होप एवरीथिंग गोज अलोंग फाइन। एंड सब चले जाते हैं बट ब्रूटस फिर लूशियस को एक बार बुलाता है, लूशियस फास्ट स्लीप, तो लूशियस पूरा नींद में होता है। इट इज़ नो मैटर एन्जॉय द हनी हैवी ड्यू ऑफ स्लम्बर, की तुम ही एन्जॉय कर लो, ठीक है, द ब्यूटी ऑफ स्लीप, बिकॉज यू हैव नो फिगर्स नो फैंटेसी, मतलब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें कोई ऐसा कोई एम्बिशन नहीं है, सो
you do not have any worries, so you are able to sleep so soundly. Which busy care draws in the brains of men, therefore you sleep so sound. मतलब तुम्हारा दिमाग में ऐसा कोई वरी है ही नहीं जो मतलब लोगों के मन में होता है, therefore you can sleep so well. Now enters Portia. Portia is the wife of Brutus, and she is not happy with the way that Brutus has been behaving lately, and she questions him about his strange behavior. So Portia says, Brutus, my lord. Brutus is also surprised to see Portia awake so late at night. He says, Portia, what mean you? Wherefore rise you now? Like, why are you awake now? It is not good for your health, thus to commit your weak condition to the raw cold morning. That at this time of the hour, it's not good for you to expose yourself to the cold air. So it's not good for you. So Portia says, if it's not good for me, it's not for yours either. And you have ungently, Brutus, stole from my bed, and you are not with me. And it's not only about today. Yesterday also at supper, you suddenly arose and walked about musing and sighing. So Brutus has been disturbed, and Portia notices this, that observes this, that he is showing some strange behavior. And while having dinner, he just rose suddenly and idhar udhar chal raha tha, musing and sighing, like what to do, what not to do. He was very thoughtful. With your arms across, and when I asked you what the matter was, you stared upon me with ungentle looks. And then Portia पूछते है उसको कि क्या हुआ, what's troubling you? And obviously he doesn't want to share this with her because this is very confidential, and he doesn't know like whether she will be able to keep this secret or not. So he just stared at her angrily, so with ungentle looks. I urged you further, then you scratched your head and too impatiently stamped with your foot. And then फिर से मैंने जब पूछा तो तुमने you scratched your head and impatiently stamped your foot, like showing irritable behavior, like he is irritated. Yet I insisted. तो फिर से पोर्शिया ने insist किया कि क्या हुआ बताओ. Yet you answered not, but with an angry wafture of your hand gave sign for me to leave you. जैसे ऐसे करके कि please go away. Alright, go away, leave me alone for now. So ऐसे करके gave sign for me to leave you, and so I did. And Portia did not stretch this any further because already 3 बार पूछ चुका है, and she was not getting any response. So she thought that maybe abhi mood खराब है and I'll ask it later. Alright, so I did, fearing to strengthen that impatient which seemed too much enkindled. So already जब mood खराब है किसी का तो फिर से उसको बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, right? And hoping it was but an effect of humor, and ऐसा लगा कि just तो सबको होता है, alright, सबका mood कभी खराब होता है. He is not in a very good state of mind, so it happens with everyone. So it happening with you too. Which sometime hath his hour with every man. तो सबके साथ ही होता ही है. It will not let you eat, nor talk, nor sleep. तो कुछ खाने का मन नहीं करता, बात करने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता. सोने को नहीं मिलता actually because you are not in a good state of mind. But the thing is that, and could it work so much upon your shape as it has much prevailed on your condition? I should not know you, Brutus. But the thing is, now you are changing into a completely different person. It's becoming such that I am not able to recognize you any further. कि मैं जो Brutus को जानती हूँ, that you are changing so much. So whatever is troubling you, it is changing you, and that is the problem. So dear my lord, make me acquainted with your cause of grief. So please tell me what is troubling you, why are you sad? So Brutus पहले excuse ढूंढता है कि I am not well in health and that's all, कि मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, that is all. So Portia says if Brutus is wise and very not in health, he would embrace the means to come back. कि अगर तो Brutus is a wise person and अगर उनका health खराब होता तो वो health को ठीक करने का कोई तरीका ढूंढ लेता. So Brutus says, yes, I am doing that. So I do. Good Portia, go to bed. So Brutus is just, for now you go to bed. I am doing my best. So Portia again questions him that if you are sick, is it physical to walk unbraced and suck up the humors of the dank morning? That if you are sick, you should be in your bed and you should not be outside, okay, walking and taking up all the, soaking up in the damp morning. Alright, so you should not do that. And if he is sick, will he steal out of his wholesome bed to dare the vile contagion of the night and tempt the rheumy and unpurged to add into his sickness? Same बात है कि if he is sick, so he should be in his bed, alright, cozy and warm, and he should not dare the evil night and tempt the
sick air, sick and dirty air to add into his sickness. So you are not sick actually. You are sick, but in your mind right now. All right. You have some offense in your mind. You have something planned that you are not telling me. So you know, my Brutus, you have some sick offense within your mind. So there is something which is not right, which by the right and virtue of my place I ought to know of. So I am your wife, so I have the right, and I think I have the quality to know this. All right, I am worthy enough to know what is troubling you. And upon my knees, then Portia kneels down, all right, to request him and upon my knees, I charm you by my once commended beauty, by all your vows of love and that great vow which did incorporate make us one. So during marriage, people do vows, and यहाँ पे जो शपथ नहीं मतलब दो promises होते हैं. So यहाँ पे बोला कि so all those promises, wedding promises, and all those promises of love that you gave me. So with all those promises, I am asking you, I am requesting you that you unfold to me yourself, your half, that I am your half, right? So please tell me why you are heavy, and so what is troubling you actually, all right? Why you are heavy emotionally, and what men tonight have had to resort to you. On Portia also notice those people coming, all right? So she asks him like, who were those people? For here have been some 6 or 7 who did hide their face even from darkness. तो 6-7 लोग आए थे who had hidden their faces even from darkness. So Brutus को बुरा भी लगता है, alright, that his wife is requesting him on her knees. So he says, kneel not, gentle Portia, please. No, you do not need to kneel now. So Portia says, I should not need if you were gentle, Brutus. Like if you were behaving your usual way, I would not need to kneel down. Within the bond of marriage, tell me, Brutus. तो बोला कि since we are married, so tell me one thing. Is it accepted I should know no secrets appertaining to कि ऐसा since I am your wife, क्या मुझे तुम्हारे secrets जानने का हक नहीं है? Am I yourself but as it were in sort of limitation कि am I only limited to keep with you at meals, comfort your bed and talk to you sometimes कि बस तुम्हारे साथ कोई खाना खाने के लिए हो, all right, I'm just there to sleep with you and talk to you sometimes, all right, कि is this my only role as your wife? Dwell I but in the suburbs of your good pleasure. Like I am not in the center but in the suburbs. Suburbs means outskirts actually, all right, suburbs. So she says that do I just live in the outskirts of your good pleasure or your mind, your happy times or your life? If it be no more, Portia is Brutus' harlot, not his wife, as if I am your mistress and not your wife. Alright, so don't I have any right to know secrets, and I should only be there with you to eat with you, sleep with you, talk to you when you wish. Alright, so is this my only role? So Brutus feels bad and says, you are my true and honorable wife. So don't talk like that. You are my true and honorable wife, my worthy wife, as dear to me as are the ruddy drops that visit my sad heart. So you are as dear to me as my own blood. Ruddy drops means my own blood. Then Portia says, if this is true, if I am as dear to you as your blood, then should I know this secret? Then should I not know this secret? अगर ये सच है तो मुझे तो secret जानना चाहिए, because you are so much disturbed by this. So then Portia says, I grant I am a woman. कि again here this misogynistic type of dialogues are there, okay. तो यहाँ पे ऐसा पोर्शिया खुद को ही बोलते कि मुझे पता है मैं वुमेन हूँ. That means I am not normally women. यहाँ पे ऐसे एज्यूम किया गया कि वुमेन डोंट नो हाउ टू कीप सीक्रेट्स. सो यहाँ पे बोले कि आई ग्रैंड आई एम ए वुमन बट आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन. आई एम ए वुमन दैट लॉर्ड ब्रूटस टुक टू वाइफ. लॉर्ड ब्रूटस का वाइफ हूँ मैं. मुझे पता है आई एम ए वुमन बट आई एम केटोस डॉटर, ए वुमन वेल रेप्यूटेड, केटोस डॉटर. सो लिमिटिंग द आइडेंटिटी ऑफ वुमन टू someone's wife and someone's daughter again. So there is some limitations in the way women are expressed. So that is there. Nevertheless, so यहाँ पे बोला है कि मुझे पता है I am a woman but I am someone who Lord Brutus took as his wife. I am a woman but I am Cato's daughter. So I am worthy enough. Do you think I am no stronger than my sex? That means from other women. I am not as ordinary as other women, being so fathered and so husbanded, because my father was Cato,
father is keto and you are my husband. So do you think I'm not stronger than other people, other women? Tell me your counsels, tell me your problems. I'll not disclose them. I'll not tell them to anyone. I have made strong proof of my constancy, giving myself a voluntary wound here in the thigh. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कन्वर्सेशन से पहले मे बी यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन तो नहीं है, बट वी कैन एज्यूम दैट बिफोर दिस कन्वर्सेशन Portia gave herself a stab. Okay, she stabbed herself in the thigh, and she is not complaining about it. So voluntarily she stabbed herself, and she now shows this wound to Brutus, saying that, see, I have wounded myself. So, are you able to know this? If I can bear this with patience, do you think I'll not be able to keep your secret? So she wounded herself, and then she is handling this. Okay, she is bearing the pain. All right. So she says that if I can bear this pain, so will I not be able to bear your secret? All right. Then Brutus truly feels very sad, and Brutus feels bad for her, pity, and he says, "Oh God, render me worthy of this noble wife. Like, make me worthy of this wife." All right. She is such a noble wife. Then knocking, there is knocking within inside, and hark, hark, one knocks. Hark means listen. Say, listen, one knocks. Someone is knocking. Portia, go in a while, and by thy bosom shall partake the secrets of my heart. It means, for now you go inside, and I will tell you, okay, slowly. By means slowly. I will tell you all the secrets of my heart. All right, you will know all the secrets of my heart. All my engagements I'll construe to thee. So whatever I have planned, whatever I have thought, I will tell you. All the charactery of my sad brows, leave me with haste. That whatever my sadness is, whatever my dilemma is, I'll tell you. For now, you leave me. I'll talk to you later. Then Portia exits. Then he asks Lucius, Lucius, who is that knocks? And Lucius enters with Ligarius. So if you remember Ligarius, he is the last conspirator that will join them. And Brutus sends word to Ligarius to come and meet him. So Ligarius comes. So Lucius says he is a sick man that would speak with you. So Ligarius was unwell at that time. Okay? So Brutus says, Caius Ligarius, that Metellus spake of, that Metellus talked about you. Boy, stand aside. Caius Ligarius, how are you? So Ligarius says, vouchsafe good morrow from a feeble tongue. That I am not well, feeble means weak, that I am nevertheless wishing you a good morning from a weak tongue, from a feeble, weak voice. Brutus says, what a time have you chosen, brave Caius, to wear a kerchief. That is, we have such an honorable act for you, such an honorable action for you, but what a time you have chosen to be sick. ठीक है, कितना बुरा टाइम में तुम्हारा तबीयत खराब हुआ है. आई विश यू आर नॉट सिक. तो लिगेरियस बोलता है, अगर ब्रूटस के पास देयर इज समथिंग that is honorable, then I am not sick. He says, I am not sick if Brutus have in mind any exploit. What is the name of honor? कि अगर ब्रूटस के पास ऐसा कोई भी एक काम है जो honorable है, then I am not sick. I am ready to do it. So Brutus says, such an exploit have I in hand, Ligarius. Had you a healthful ear to hear of it? कि मेरे पास है वैसा एक काम, Ligarius, but I wish you were healthy enough to hear it. Then Ligarius says, by all the gods that Romans bow before, I here discard my sickness. कि सारे भगवान को साक्षी मान के जो रोमन्स लोग मानते हैं, I leave my sickness here. From now I am not sick. So you are the soul of Rome. Brutus को बोलता है, you are the soul of Rome. You embody the soul of Rome. Brave son derived from honorable loins. So you have an honorable ancestry or heritage. You, like an exorcist, had conjured up my mortified spirit. तो exorcist वो जो spirits बुलाते हैं, spirits के साथ बात करते हैं, ऐसे exorcism करते हैं. Alright. So you like an exorcist, you have conjured up my mortified spirit. So you have woken me up again. Alright, you have woken me up again. Now you tell me to run, and I will run with things impossible and get the better of them. ठीक है? So tell me to do impossible things, I will do impossible things. So tell me what to do. Then Brutus says, a piece of work that will make sick men whole. So Brutus बोलते हैं कि एक ऐसा काम करना है जो sick लोगों को ठीक करे. And Ligarius भी इस वर्ड में एक पन यूज करता है कि but are not some whole that we must make sick. कि but ऐसे भी तो कोई लोग हैं जो अभी पूरे हैं जिन्हें हमें खत्म करना है.
ठीक है, जिन्हें हमें सिक बनाना है, दैट मीन्स वी हैव टू किल हिम. देयर आर सम पीपल राइट नाउ हु आर होल, दैट मीन्स हु आर अलाइव, जिन्हें हमें सिक बनाना है, मतलब जिन्हें हमें मारना है इन ए वे. ठीक है, मतलब मारना नहीं है यहाँ पे, जिन्हें हमें थोड़ा कंट्रोल करना है. ज़्यादा ही ये ठीक है तो थोड़ा सा बुरा करना है. सो ब्रूटस बोलते हैं एक काम जिससे खराब चीज़ अच्छा हो, तो यहाँ पे बोला और कोई कोई तो ऐसे है ना, ही इज ऑल्सो रेफरिंग टू सीजर में भी, कि बट ऐसे ऐसे लोग हैं ना जो अभी तो ज़्यादा ही ठीक है, उनको थोड़ा सा खराब भी करना है. सो ब्रूटस सेज दैट मस्ट वी ऑल्सो. ठीक है, वो भी करना है. वट इट इज़ माई कायस आई शैल अनफोल्ड टू दी. तो क्या है, हम रास्ते में, मतलब मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा. आई शैल अनफोल्ड टू दी एज यू आर गोइंग टू हुम इट मस्ट बी डन. तो हम लोग उधर ही जा रहे हैं जो काम हमें करना है. तो लिगेरियस से सेट ऑन योर फुट, कि आप चलो, एंड विद ए हार्ट न्यू फायर्ड आई विल फॉलो यू. तो आप आगे आगे चलो, मैं आई विल फॉलो यू. टू डू आई नो नॉट वट, कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है. बट इट इज़ सफिशियंट, इट्स सफिशियंट दैट ब्रूटस लीड्स मी ऑन. बट इट इज़ सफिशियंट कि ब्रूटस मुझे लीड कर रहे हैं. दैट इज़ एनफ. जो भी करना है आई विल डू. क्या करना है नहीं पता, बट ब्रूटस इज लीडिंग एंड आई विल फॉलो. सो ब्रूटस सेज फॉलो मी देन, एंड दे लीव. So this is Act 2 Scene 1. We'll deal with Act 2 Scene 2 in the new video. Thank you.